Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fifth module of the topic probability, and in this module we are going to learn about the conditional probability. So first let me share the screen with you. Okay, so as I told you, this is the class 5 of the topic probability, and in this particular lecture we are going to solve the questions on, we will understand the concept of conditional probability and also we'll solve the questions on conditional probability. पहले के 4 क्लास में हमने क्या किया था? तो in the first class we learned about the introduction. We have done the introduction to the probability and we solved some basic level questions. Class 2 में we solve some moderate level questions on coin, dice and card. Class 3 में we solve some moderate level miscellaneous questions, and in class 4 we learnt about the type of events and some exam level questions. ठीक है? So before we go through this video, I request कि आप पहले की videos check out करें और फिर इस मॉड्यूल को सॉल्व करें. ठीक है? Now let's start with the topic conditional probability. तो एक एग्जांपल देखते हैं. A coin is toss. If head occurs, then toss once again. And if tail occurs, then roll a dice. Find the sample space. तो एक कॉइन को टॉस करते हैं हम, तो हमें पता है कि देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, इधर वी गेट हेड और वी गेट टेल. यहां उन्होंने कहा है कि इफ हेड अकर्स देन टॉस वंस अगेन. तो हेड अगर आता है तो वापस एक बार कॉइन को टॉस करना है. अभी वापस एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो वंस अगेन देयर आर टू केसेस, इधर वी गेट हेड और वी गेट टेल. बट इफ वी गेट टेल तो कॉइन टॉस नहीं करना है, देन वी नीड टू रोल द डाइस. सो वी नो दैट व्हेन वी रोल द डाइस we get 6 possible outcome. Either we get 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. तो अगर आपको कोई पूछे कि इसका सैंपल स्पेस निकालो, क्या होगा ये पूरे इवेंट का जहां पर दो एक्टिविटीज हो रही है. सो दैट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस. कैन आई से इफ हैड अकर्स तो हमें कॉइन को टॉस करना है. सेकंड केस में भी हो सकता है हमें हेड आ जाए, या फिर सेकंड केस में हो सकता है कि हमें टेल आए. What happens if tail comes? If tail comes, then we have to roll the dice. Now here we get 6 different cases. Either we get 1. तो tail आने के बाद हो सकता है आपको 1 आए. Tail के बाद हो सकता है आपको 2 आए. Or you get 3. Or you get 4. Or 5. Or 6. So can I say this is a total sample space? And here the elements in this sample space are 8. ठीक है? Now this particular question. Okay. What is given here? Jennifer picked an Jennifer picked a letter from an English alphabet. What is the probability that the letter is E? तो English alphabet जो है 26 in number, उसमें से एक letter pick करना है. What is the probability that the letter is V? Now we know that कि probability is nothing but a favorable outcome divided by total possible outcome. यहाँ पर total possible outcome क्या है? So out of this 26 letters, we have to choose one letter. So this can be done in 26 even ways, means 26 different letters can come. हमें क्या चाहिए? We want the letter to be E. Favorable outcome is we want the letter to be E. So मतलब ये एक ही लेटर है तो उसी में से एक आने वाला है. So we want the letter, एक ही लेटर होता है E तो. So what is the probability that you get the letter E is nothing but 1 upon 26. ठीक है, very simple question. Now next, Jennifer picked a letter from an English alphabet and it is found to be vowel. उसने एक लेटर पिक किया और उसे ये पता चल गया कि जो लेटर मैंने पिक किया है वो वॉवेल है. That is confirmed. Now the question is, what is the probability that the letter is E? आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी हो तो यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो गया है. कैन आई से हियर द टोटल पॉसिबल आउटकम इज नॉट 26. इस वाले केस में 26 था. यहाँ पर ये पता चल चुका है कि ये वॉवेल है, मतलब जो भी लेटर पिक किया जा रहा है दैट इज वॉवेल, इट इज कंफर्म. सो आवर सैंपल स्पेस इज रिड्यूस टू AEIOU. This is our sample space. First case में sample space was the entire English alphabet. All 26 was the sample space. Here the sample space is reduced to 5. So the total possible outcome जो होगा वो क्या हो जाएगा? Can I say कि इस पर्टिकुलर केस में जो भी हमारा सैंपल स्पेस है वो 5 में से ही एक होगा. ठीक है, तो इस टाइप के so total possible outcome is 5. And here what do we want? Once again we want the letter to be E. मतलब एक ही कोई लेटर चाहिए E. So that is
1. So probability of getting E here, it is 1 by 5, not 1 by 26, because sample space कम हो चुका है. ठीक है. Next, in a class 30% students failed in physics, 25% students failed in maths and 15% students failed in physics and maths both. तो ऐसा है situation. इसमें they have given two cases. मान लेते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से फेल वाले स्टूडेंट्स ये सर्कल में है और 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में है 30%. मान लेते कि द फर्स्ट सर्कल इज इट रिप्रेजेंट्स फिजिक्स एंड सेकंड सर्कल रिप्रेजेंट्स मैथ्स. मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स है 25% और देयर आर 15% स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये अंदर वाले है 15%. ठीक है. नाउ इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फेल्ड इन फिजिक्स. ठीक है, तो क्या होंगे उसके चांसेस? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्ड इन फिजिक्स, 30% स्टूडेंट्स फेल्ड हुए फिजिक्स में, तो 30% चांस है. करेक्ट. सो आंसर इज 30%. 30% कैन बी रिटन एज 30 by 100, that is equal to 0.3. Perfect. Now let's take the case 2. If a student is selected at random, failed in maths, find the probability that he is failed in physics also. यानी कि ये क्या बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट पिक किया है और वो स्टूडेंट का कंफर्म है कि वो स्टूडेंट मैथ्स में फेल हुआ है. अच्छा, मैथ्स में फेल होने वाले लोग कितने हैं? ये 25% लोग हैं जो कि मैथ्स में फेल हुए हैं. तो नाउ आवर सैंपल स्पेस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 to 25. करेक्ट. अपना सैंपल स्पेस जो है वो 100 से 25 बन चुका है. ठीक है. सो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 100 नहीं होगा, वो होगा 25%, बिकॉज 25% मैथ्स में फेल हुए हैं. पहले 100 था, दिस वैल्यू वाज 100, नाउ दिस वी नीड टू राइट एज 25. ठीक है. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फेल्ड इन फिजिक्स आल्सो. तो फिजिक्स में इसमें से कितने लोग हैं जो कि फिजिक्स में भी फेल हुए हैं? सो वी नो दैट देयर आर 15% हु आर फेल्ड इन मैथ्स एंड हु आर फेल्ड इन फिजिक्स आल्सो. तो फिजिक्स आल्सो वाले लोग हैं 15%. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ये स्टूडेंट्स फिजिक्स में भी फेल हुए हैं एंड मैथ्स में भी फेल हुए हैं? सो दैट प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट टोटल पॉसिबल आउटकम इज 25% और उसमें से फिजिक्स में फेल होने वाले लोग हैं 15%. सो आंसर इज 15/25, that is equal to 3/5. ठीक है. I hope you can see the difference between both the question. यहाँ पर हमारा sample space जो था वो reduce हो गया. Here it was 100%, here it was 25% only. Next. This is a question which has come in NIMSET 2015 और ये question IIT JEE 2003 में भी आ चुका है. The question is like this: A is targeting B, B and C are targeting A. Probability of hitting the target by A, B and C are 2/3, 1/2, 1/3 respectively. So A B को टारगेट कर रहा है, B and C A को टारगेट कर रहे हैं. अभी A B C का टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी दिया है. A का टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी इज 2/3. So there is a probability of 1/3 that A cannot hit the target. Similarly, B का हिट करने का टारगेट इज हाफ. It means the probability of not getting success is also half. And C का चांस है हिट करने का चांस 1/3 है, तो 2/3 चांस है कि वो हिट ना कर पाए. सो हमने ये निकाल दिया. नाउ if A is hit, then what is the probability that B hits the target and C does not? Conditional probability में हमेशा दो इवेंट होते हैं और पहला इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालना होता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट इवेंट, A is hit, तो इस इवेंट को हम E1 बोल देते हैं. करेक्ट. And what is the probability that B hits the target and C does not? तो this is event E2. हमें ये सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कंडीशन ये है कि इवेंट E1 फर्स्ट इवेंट
हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट इवेंट ही नहीं हो रहा है तो इवेंट 2 का तो बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इवेंट ए इज हिट। अगर ए हिट ही नहीं होता है तो फिर हमें क्वेश्चन को छोड़ देना है, करेक्ट। मतलब आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सो इवेंट E1 होने के बाद इवेंट E2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए नाउ, तो इसमें हमें क्या करना होता है ना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इवेंट इवन हो जाए, इवन इवेंट हो जाए, क्योंकि जब तक ये इवेंट नहीं होगा ये तो इवेंट E2 हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए हिट हो जाए। इवेंट A1 क्या कहता है, ए इज हिट। अच्छा, ए को हिट करने वाले लोग कौन है, बी एंड सी। तो इसमें देखो तीन चीजें हो सकती है। ए हिट कब होगा, तो देर आर 3 केसेस पॉसिबल। फर्स्ट केस ये है कि बी हिट कर दे और ए सी हिट ना कर पाए, बी हिट करे एंड सी हिट ना कर पाए तो भी ए तो हिट हो ही गया। दूसरा केस है कि बी ना हिट कर सके एंड सी हिट कर ले, मतलब सी ने हिट कर दिया। या तो तीसरा केस ये भी बन रहा है कि बी भी हिट कर दे एंड सी भी हिट कर दे, फिर भी ए तो हिट हो ही गया, 2 बार हो गया लेकिन हो गया। ठीक है, सो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। बी का हिट करने का प्रोबेबिलिटी इज हाफ, सी का हिट ना करने का प्रोबेबिलिटी इज 2/3। इफ यू पुट द वैल्यूज वी विल गेट द इवेंट E1 का प्रोबेबिलिटी। इसका आंसर निकालेंगे। सो इट इज 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इट मीन्स इट इज 4/6। 4/6 मीन्स इट इज 2/3। तो ए के हिट होने के चांसेस 2/3 है, ए का हिट होने का चांस 2/3 है। तो इवेंट E1 का वी गॉट द प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज द इवेंट E2, कंसिडरिंग कि ये इवेंट E1 हो चुका है। इवेंट E2 क्या कहता है, इवेंट E2 कहता है कि B शुड हिट द टारगेट एंड C डज नॉट। मतलब ए हिट कब हो, जब B टारगेट को हिट करे एंड C ना कर पाए, ये वाला। ठीक है, B हिट कर सके एंड C ना हिट कर सके। नाउ B का मतलब ये वाला है, दिस वी वांट, करेक्ट ना, ये हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/6। परफेक्ट। नाउ हमें क्या चाहिए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। हमने दोनों इवेंट को फिलहाल अलग अलग माना है कि इवेंट E1 है और ये इवेंट E2 है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कंसिडरिंग दैट इवेंट E1 हुआ है, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला इवेंट ही नहीं होगा तो सेकंड वाला इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढ ही नहीं सकते, वो तो फिर 0 ही है। सो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कंसिडरिंग दैट कि इवेंट E1 हो चुका है। इसका हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अभी आप देखोगे E1 और E2 में, E1 फर्स्ट इवेंट में हमने क्या लिखा था, B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट C इंटरसेक्शन, ऐसे लिखा था। और ये उसी का एक पार्ट है ना, आप देख रहे हो ये वाला पार्ट इसी का एक पार्ट है, फर्स्ट इवेंट का ही एक पार्ट है। सो इट इज अ सबसेट। इट मींस कि ये जो इवेंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन भी तो है। सो दिस इज नथिंग बट 2/6 और डिवाइड बाय इवेंट E1 होने का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था, इट इज 2/3। So answer is 3/6. So answer is half. This is the correct answer. Next. NIMSET 2017 का question. A man speaks truth 2 out of 3 times. So एक man सच कितनी बार बोलता है, 2 out of 3 times। 3 बार में से 2 बार वो सच बोलता है। It means that 1 out of 3 times he lies। उसको 3 स्टेटमेंट बोलने को बोलेंगे तो वो 2 बार सच बोलेगा, 1 बार स्टेटमेंट झूठ बोलेगा। नाउ he threw a dice and report it
as 1. He threw a dice and report it as 1. Can we say this is the first event E1? Probability that actually it is 1. This is the second event. ठीक है? ये जो सेकंड इवेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इवेंट कि उसने 1 रिपोर्ट किया. ये तो कंफर्म है कि उसने डाइस थ्रो किया एंड उसने बोला कि डाइस पे 1 आया है. दिस इज कंफर्म, दिस हैज हैपेंड. नाउ अगर ये हुआ है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्चुअली में वो 1 था. ठीक है. नाउ अगर ये इंसान डाइस थ्रो कर रहा है और वो कह रहा है कि 1 आ रहा है, तो उसमें दो चीज है. हो सकता है वो सच बोल रहा हो, एक्चुअली में 1 आया हो, और हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, 1 ना आया हो. करेक्ट. तो इसमें दो केसेस बन रहे हैं. प्रोबेबिलिटी, अगर हम इस फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, तो ये क्या होगा? देखो इसमें दो केस बन रहे हैं कि आदमी या तो सच बोल रहा है, वो ट्रुथ बोल रहा है. मतलब क्या है कि एक्चुअली वो 1 ही था. ट्रुथ मीन्स 1. करेक्ट ना? ये 1 ही था. या तो फिर ये हो सकता है कि 1 ना आया हो, 1 ना आया हो, ना आया हो. ठीक है. एंड इट मीन्स कि ही इज लाइंग. करेक्ट. दो ही चीज में वो 1 कब बोलेगा? 1 दो केस में बोल सकता है कि एक्चुअली में 1 आया है एंड ही स्पीकिंग ट्रुथ. अदरवाइज 1 हैज नॉट कम एंड ही स्पीकिंग लाई. मतलब आया 3 है लेकिन वो झूठ बोल रहा है कि 1 आया करके, ऐसा. Okay, so what is the probability that when we throw a dice we get 1? So that probability is 1 by 6. And what is the probability that he is speaking truth? So that probability is 2 by 3. Second case ये है कि 1 ना आया हो. So 1 ना आने की probability है 5 by 6 and that person is lying. That probability is 1 by 3. So this is nothing but 2 by 18 plus 5 by 18, that is equal to 7 by 18. So if a person is throwing a dice and he is saying कि वो 1 है, that probability is 7 by 18. Sorry. Now second event E2 क्या कहता है कि actually में वो 1 है, means he is speaking truth, means he is talking about this case only. ये वाला केस का बात हो रहा है, which is a subset of E1. Now can I say here that the probability of event E2, ये जो है event E2 ये सबसेट है E1 का. तो ये भी है ना, ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि ये इसका सबसेट है. सो इंटरसेक्शन है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये दोनों इवेंट क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्चुअली में वो 1 था, मतलब ही वाज स्पीकिंग ट्रुथ, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 1 by 6 into 2 by 3, 2 by 18. सो इट इज 1 by 2 by 18 ही लिखते चलिए, 2 by 18. नाउ we need to find the probability of event E2 considering that key event E1 has happened. That probability is nothing but probability of E1 intersection E2 divided by probability of E1. Probability of E1 intersection E2 is 2 by 18 divided by 7 by 18. 18 cancels, so answer is 2 by 7. 2 by 7 is the correct answer. Next, in an exam, there are multiple choice questions, MCQ, with 4 possible answers to each question, of which one is correct. तो ये आपके एग्जाम के जैसा ही फॉर्मेट है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से 4 चॉइसेस एंड 1 आंसर इज करेक्ट. प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर इज 90%. तो वो जो स्टूडेंट जिसने जो ये एग्जाम देने बैठा है उसको 90% क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, और बाकी का 10% में वो क्या करेगा? फिर 90% क्वेश्चंस के तो आंसर आ ही गए, बाकी का 10% में वो क्या करेगा? तुक्का लगाएगा. लग गया तो ठीक है. इफ द स्टूडेंट गेट्स द करेक्ट आंसर, what is the probability that he was guessing? NIMSET 2017 का this is the question. Here you can see that there are 2 events. Student gets the correct answer. ये first event है, ये इवेंट हो चुका है, उसका आंसर सही आ चुका है. नाउ सही आंसर आने के 2 तरीके हैं. एक तो ये है कि उसको एक्चुअली में सही आंसर पता था इसलिए सही आ गया,
या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सही आंसर नहीं पता था, उसने गैस किया और सही लग गया। सो ये इवेंट E2 कह रहा है कि वो गैस करके आंसर आया हुआ है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आने के वंस अगेन दो चांस है। एक तो ये चांस है कि उसको एक्चुअली आंसर पता था, नोज आंसर, और दूसरा ये है कि उसको आंसर नहीं पता था एंड उसने गैस करके किया और सही हो गया। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? दैट प्रोबेबिलिटी इज 90%, मींस इट इज 9/10। और जब सही आंसर पता हो तो सही ही होगा, तो 1, करेक्ट। नाउ आंसर नहीं पता होने के चांसेस कितने हैं? सो दैट चांसेस इज 1/10। 10 में से उसे 9 क्वेश्चन के आंसर पता है, तो वो तो उसने सही कर ही दिए, लेकिन एक आंसर नहीं पता है, इसमें वो तुक्का लगाएगा। तो तुक्का लगाए और सही निकल के आ जाए, उसके चांसेस क्या है? करेक्ट ना, हमें पता है कि 4 में से दैट चांसेस इज 1/4। 4 क्वेश्चंस में से, 4 ऑप्शंस में से उसे एक सिलेक्ट करना है। 25% चांस है कि वो सही हो जाए, 75% चांस है कि वो गलत हो जाए। ठीक है, सो हमें तो सही चाहिए, सो दैट इज 1/4। सो द टोटल इट इज 9/10 plus 1/40. It means it is 37/40, correct? So एक स्टूडेंट जिसको 90% क्वेश्चन के आंसर पता है और उसका आंसर सही आ जाए, उसके चांसेस है 37/40, यानी कि 40 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा तो उसमें 37 क्वेश्चंस उसके सही होंगे। उसमें से, इस 37 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन वो होंगे जो उसको पता थे और एक क्वेश्चन तुक्का मार के सही हो गया। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी कि वो गैस कर रहा था, यानी कि हमें ये चाहिए कि आंसर पता नहीं था और वो गैस कर रहा था, ये वाला चाहिए। सो कैन आई से दिस प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ सबसेट, इवेंट E2 इज अ सबसेट ऑफ इवेंट E1, तो ये तो इंटरसेक्शन भी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, दैट प्रोबेबिलिटी वाज 1/40। We need to find probability of event E2 considering that कि event E1 हुआ है, that probability is, this is the formula. Okay, so with this we are through with this video. In this video we covered conditional probability and we also covered some exam level questions. Next is class 6 of the topic probability, and in that we will learn about very important part, that is binomial probability. So अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है आपकी क्वांट की जर्नी में, आपकी एग्जाम की जर्नी में, दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। And till then, keep on practicing math because math is easy. Thank you.